हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सिंपल। हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। note it, graph of x greater than equal to 0, graph of x greater than equal to 0. This is the graph. O x dash y dash x greater than equal to 0. Graph of x greater than equal to 0 means this is the graph. This one is the graph. This shaded portion is the required graph. Is it clear? On this side, x greater than equal to 0. Graph of y greater than equal to 0. Y greater than equal to 0. This is the graph. This one is O x dash y dash y greater than equal to 0. Graph. This one is the graph. Right? On this side, above side, this is the graph. Graph of x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 combined, two inequalities. This is the graph. This one is x dash y dash x greater than equal to 0. First we write this type on this side. This one is the graph. Right? X greater than equal to 0 on this side. X greater than equal to 0 on this side. And y greater than equal to 0. Y greater than equal to 0 on this side. Y greater than equal to 0. This one. This is the graph. Y greater than equal to 0 on this side. This portion is the common portion. This one is the common portion. This is the common. Right? This common portion is the required graph. That is this is the required graph. Required graph. That is first quadrant. That is first quadrant. These are known as the constraints. Constraints means
linear inequalities. Right? And next is the feasible solution. Feasible solution. Feasible solution means points within and on the boundary of the feasible region. Represents feasible solution of the constraints राइट. तो फिजिबल सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आपके पास पॉइंट्स विद इन हो या ऑन द बाउंड्री हो. दिस मच इज द फिजिकल सोल्यूशन. नाउ वी स्टार्ट सम एग्जांपल्स. We start first example. Solve the following linear programming problem graphically. This one is given. Maximize z is equal to 4x plus y subject to the constraints. Constraints means inequalities. Constraints x plus y less than equal to 50. इसे नंबर 1 ले लीजिए. 3x plus y less than equal to 90. इसे नंबर 2 ले लीजिए. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. That is, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. This one is the first quadrant. Draw the graph from first. Let x plus y is equal to 50. Equality, equation, line. As x equal to 0, y equal to 50, y equal to 0, x equal to 50. पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? x 0, y 50, y 0, x 50. Right? From second, let 3x plus y equal to 90. As x 0, therefore y equal to 90. y 0, therefore x equal to 30. कौन से दो पॉइंट्स आ गए? 0 90, एक हो गया 30 0. That's all. This is the straight line x plus y equal to 50. And draw the graph. Draw the graph.
Draw the graph. Write O, X, X dash, Y, Y dash. 0, 50. X is equal to 0, Y is equal to 50. It means 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90. Maximum 90. X पे maximum 50. 1, 2, 30, 40, maximum 50. Clear? We write 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90. 10, 20, 30, 40, then 50. 0, 50. 0, 50. X is equal to 0, Y is equal to 50. This is the point. 0, 50. This point. 0, 50. A point. Coordinate 0, 50. 50, 0. 50, 0. B point. This one is the 50, 0. Draw the line. Draw the line. This line is the graph of x plus y is equal to 15, but we require x plus y less than equal to 50. This is the graph. This line either inequality of x plus y less than equal to 50, either graph this side or graph this side. It depends upon 0, 0. Origin. If origin satisfy this one, first इसका मतलब graph including the origin, otherwise other side. Put here 0, 0. 0 plus 0 is 0, 0 less than equal to 50. Is it true? Yes, this one is true. Graph on this side. इसका मतलब ये हुआ graph आपका इस side आ गया. बस that's all. One the graph. Clear? Number 1. इसका graph on this side. Solve. It depends upon the origin. Next. 0, 90. This point is 0, 90. B point. 0, 90. 30, 0. This one. C point. 30, 0. Join. Right? This is the line. Graph 3x plus y equal to 90. But we find the graph 3x plus y less than equal to 90. Again, it depends upon the origin. If origin satisfy this one, graph and including the origin, otherwise, other side. 0 plus 0 is 0, 0 less than equal to 90, which is true. Graph on this side. Second graph. This side. Is it clear? Which is the common portion? This one is the common portion. This one is the common portion. Shaded portion is the required graph. Shaded portion. Shaded portion is the required
graph, this shaded portion. This is the shaded portion is the required graph. Right? Find this point also. How to find? Just solve these two lines. Solve x plus y equal to 50, 3x plus y equal to 90. y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 40, इनको सॉल्व कर दीजिए. माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40 एंड x इज इक्वल टू 20. देयरफॉर x की वैल्यू 20 आ गई है. x की वैल्यू 20 पुट करो तो y की वैल्यू 30 हो गई है. x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 30. दिस पॉइंट O C, this point is A, this point is D. Mark point D. Coordinates 20, 30. Right? This one is the feasible solution. But we find the maximum z. Now z कितना दिया? 4x plus y at these are the points on the feasible region. At O 0 0, z is equal to 0 plus 0 equal to 0. At C point 30, z is equal to, put 30, 120 plus 0 is equal to 120. At A 0 50, z is equal to 0 plus 50 is equal to 50. At D 20 30, z is equal to, put 20, 80 plus 30 110, 80 plus 30 110. Right? This one we find the maximum. This one is the maximum. This one is the maximum value. Hence maximum value of z is 120 at the point कौन से पॉइंट पे है? 30. At the point 30, this one is the answer. ये है बेटे. This is the type. All questions are same. Right? Next. Minimize z equal to this one subject to constraints. इसे 1 ले लेते हैं. This one is 1, this one is 2 and this one is 3. इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट? We find the minimize z from first, let x plus 2y equal to 10. This is the straight line. As x equal to 0, therefore y is equal to 5, y equal to 0, therefore x is equal to 10 points
0, 5 and 10, 0. That's all. From second, let 3x plus 4y equal to 24 as x equal to 0, y is equal to 6, as y equal to 0, x is equal to 8. Points are points 0, 6 and 8, 0. 0, 6 and 8, 0. Right? Yes, that's all. And this one is the first quadrant. Now we start. Draw. Origin x dash, y dash, maximum 10 on x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y maximum 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Draw the line. 0, 5. 0, 5. X is equal to 0. This is the origin. 0, 0. 0, 5. This point. 10, 0. X is equal to 10. 9, 10, right, 9, 10. 10, 0. This is the 10, 0. Draw the graph. Draw the straight line. This is the straight line. Straight line. Right? This is the straight line. X plus 2y equal to 10. But we required x plus 2y greater than equal to 10. It depends upon the origin. If satisfied this one, then including the origin, otherwise other side. Put xy is equal to 0, 0. 0 plus 0, 0 greater than equal to 10. Is it true? Which is not true. Graph on this side. Graph on this side. 1 ka graph. This one is 1. Again 0, 6. X is equal to 0. Y is equal to 6. 0, 6. This is the point 0, 5. This is the point 0, 6. 8, 0. This point is 8, 0. Join. This one. 3x plus 4y less than equal to, put 0, 0. 0 less than equal to 24, which is true. Graph origin side. This is the graph. Graph of second. Origin side. And third is x greater than equal to 0, y greater than equal to, that is the first quadrant. Answer is in the first quadrant.
and find the common portion. Find the common portion. Check it. This graph, first graph on this side, graph on this side, on this side, this side, this one is included, and graph on this side, again this one is the common portion. Which is the common portion? This one is the common portion. This is the common portion. This point, shaded portion, shaded portion is the required graph. And find the coordinates of this one. This point is A, mark A point. This point is B, mark B point, and this point is C. Find C. For point C, solve x plus 2y equal to 10, 3x plus 4y equal to 24. Right? That is simplify, multiplied by 2. That is 2x plus 4y equal to 20. 3x plus 4y equal to 24. Negative, negative, negative. Minus x is equal to minus 4. Therefore, x is equal to 4. Put x is equal to 4. And y is equal to 3, and y is equal to 3. This is the point. X equal to 4 and y equal to 3. Therefore, point C is equal to 4, 3. Right? Four, 3. Now, this one is given minimize. Minimize z is equal to 200x plus 500y. This is the bounded. This one is the feasible region. At A, coordinates 0, 5. Z is equal to 0 plus 5 means 2500. This is equal to 2500. At B, 0, 6. Z is equal to 0 plus 3000, and right answer is 3000 calculation. At C, 4, 3. Z is equal to, put 4, 800, put 3, 1500, 2300. Right? Which is minimize? We write the minimize. This one is the minimize. Minimize value. Hence Z is minimum, that is equal to 2300 at point C, 4, 3. This one is the answer, right? Next example 3. Solve the following. आपने मिनिमाइज तो मैक्सिमाइज दोनों फाइंड करना. ये मिनिमाइज मैक्स सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स आपके पास दिया हुआ है, तो आई थिंक बेटर है कि हम इसी को 1, 2, 3 ले लेते हैं. आप इसे नंबर 1 ले लीजिए.
इसे नंबर 1 ले लीजिए और बेटे इसे नंबर 2 ले लीजिए, इसे नंबर 3 ले लीजिए, राइट 3। एंड दिस वन इज, दिस होल थिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। चलिए फ्रॉम फर्स्ट लेट x plus 3y equal to 60 as x is equal to 0, y is equal to 20, as y is equal to 0, x is equal to 60। ये बेटे आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए, दीज आर 2 पॉइंट्स। एक आ जाएगा 0 20, 1 इज़ दी 0 20 एंड दूसरा पॉइंट आ गया 60 0। बस दैट्स ऑल। हमें पॉइंट चाहिए, इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से हमें पता चल जाएगा कि आइदर किस साइड हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम सेकंड कौन सी है? एक्स लेट फ्रॉम सेकंड लेट x प्लस y इक्वल टू 10 एज x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 10 आ गई है, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 आ गई है। इसका मतलब इसके 2 पॉइंट्स आ गए हैं 0 10, दूसरा पॉइंट आ गया 10 0। थर्ड इक्वेशन पे आ जाइए। फ्रॉम थर्ड x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, तो इसमें आपके पास इसके भी हम 2 पॉइंट्स लेंगे। लेट x इज इक्वल टू y, राइट। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें भी 10 है, 60 है, 20 है, बेटर है कि 10 के ले लेते हैं। एज x इज इक्वल टू 0, y भी 0 आ गया। एज x इक्वल टू 10, एनी डू टेक एनी 2 पॉइंट्स, y भी 10 आ जाएगा। आपके पास जो 2 पॉइंट्स हो गए, एक हो गया 0 0, एक आ गया 10 10। बस दैट्स ऑल। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका जो ग्राफ बनेगा बेटे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब चलते हैं इसके ग्राफ के लिए। चलिए, ये आपके पास origin 0 0, this one is x dash, y dash, राइट। चलिए पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट आपके पास ये पॉइंट दिया, फर्स्ट में है 0 20 अप टू 60, आई थिंक 10 10 को मार्क कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 20, 10 20, ये बन जाएगा आपके पास 10, दिस वन इज़ 20, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट 0 20, ये हो जाएगा आपके पास 0 20 पॉइंट्स, राइट। अगला है 60 0, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60, ये पॉइंट हो जाएगा 60 0 60 0। इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये बेटे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखना ये है कि इसका जो ग्राफ है ओरिजिन की साइड जाएगा। देखो इसका जो ग्राफ है या तो इस साइड होगा या इसका इस साइड होगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन दी ओरिजिन। यदि ओरिजिन सेटिस्फाई करता है एंड पुट 0 0, किस में पुट करना? फर्स्ट इक्वेशन में 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज़ ट्रू। इसका जो बेटे ग्राफ है वो इस साइड को जाएगा। मैंने क्या किया, एरो नंबर 1 कर दिया। 1 इक्वेशन का ग्राफ नीचे जाएगा, खत्म। सेकंड पॉइंट पे गया। अब इस पे आ जाइए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10,
ये बन जाएगा आपके पास 0 10 और ये है आपके पास 10 0 10 0। इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस वन, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब इसका जो ग्राफ है इसमें हम 0 0 पुट करके देखेंगे। 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब नॉट इंक्लूडिंग द रीजन, इसका ग्राफ ऊपर की साइड जाएगा। ये हो गया बेटे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, राइट। अब आ जाइए थर्ड वे। ये है आपके पास है x 0 0, तो 0 0 तो बेटे यही पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और 10 10 तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास है 10 10, दिस पॉइंट इज़ 10 10, राइट। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ग्राफ का, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आप देखेंगे कि या तो इस लाइन के इस साइड होगा या इस लाइन के इस साइड होगा, राइट। तो हम कैसे देखेंगे, हमें इसके एरो का निशान किस साइड देखेंगे हम। अब यदि इस साइड होगा तो ये वाले जितने भी इस साइड के पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करेगा। आप किसी भी पॉइंट को चेक कर लीजिए। आप इस पॉइंट को ले लीजिए 0 10, इसमें 0 10 पुट कर दिए, x को 0 पुट करिए, y को 10 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 20 पुट करिए, ये वाला पॉइंट पुट करिए, तो ये हो गया आप x 0 है, y 20 है, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है इस साइड को जाएगा, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करेगा। ये हो गया आपके पास थर्ड का ग्राफ, राइट। ये थर्ड का ग्राफ हो गया, खत्म। देखेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के देखेंगे तो आपके पास जो बेटे ग्राफ बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, इसके अंदर बनेगा ग्राफ। चलो कैसे चेक करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, आपके पास है इसका ग्राफ ऊपर को है, पहले नंबर 1 पे आइए, लाइन ये है लाइन आपके पास फर्स्ट, इसका ग्राफ नीचे को है, इसका मतलब ये वाला कट गया पोर्शन, ये वाला पोर्शन कट गया। चंगी तरह क्लियर कर लीजिए। सेकंड का ग्राफ ऊपर को है, जब इसका बेटे सेकंड का ग्राफ ऊपर को है, ये देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ है ऊपर को है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो चीज़ें हैं, ये भी कट गई, ये भी कट गई, राइट। ये दोनों चीज़ें कट गई है। अब जो थर्ड का ग्राफ इस साइड को है तो ये वाला पोर्शन भी कट गया। तो आपके पास बचा कौन सा पोर्शन है, मेरे पास जो ग्राफ बचा ये बचा बेटे ग्राफ, दिस वन, दिस शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, राइट। shaded portion, shaded portion is the required ग्राफ। ये बेटे आपके पास ग्राफ बच गया, राइट। अब हम इसमें से ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। तो आपके पास इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसे आप मार्क कर लीजिए ए पॉइंट। ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट जहाँ लिखेंगे, इसे मैंने बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हम जहाँ लिखेंगे। ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये आपके पास डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब सिर्फ ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, आपने ए एंड बी फाइंड करना। तो कैसे हम करेंगे ए एंड बी फाइंड, चलिए पहले ए कर लेते हैं। ए के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तब ए पॉइंट आएगा। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशंस को। तो आपके पास है एक्स सेकंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और थर्ड क्या है एक्स माइनस वाई, ये लिखा ना, x इक्वल टू वाई या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने से ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई है 5। इसका मतलब ये आ गया 5, तो पॉइंट आपके पास निकल गया 5 5 5 5। कौन सा पॉइंट निकाला मैंने, ए निकाला, ये पॉइंट हो गया 5 5, राइट। अब बी पॉइंट निकाल दीजिए। सॉल्व बी पॉइंट के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए, एक थर्ड इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, बी पॉइंट निकलेगा ऐसे,
राइट। ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट फॉर पॉइंट ए। अब पहला पॉइंट ए है, अब आएगा फॉर पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे आ जाइए। 1 एंड फर्स्ट कौन सी है, x + 3y = 60 और थर्ड कौन सी है, x - y = 0। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, या बेटे इनको सॉल्व करेंगे, माइनस करिए। माइनस करने से ये कट गए 4, 15। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। तो x की वैल्यू भी आपके पास 15 आ गई है। इसका मतलब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया है 15, 15। अब हो गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 15, 15 यहाँ पे लिख देते हैं 15, 15। राइट, बस हो गए, सारे पॉइंट्स निकल गए। अब आप सॉल्व कर दीजिए। नाउ अब आपके पास सॉल्व कर दीजिए। अब आपके पास आ गया जी दुश्मन, यस। अब करते हैं, आपके पास z कितना दिया है, z = 3x + 9y एट कौन सा पॉइंट है। चलिए पहले हम ए पॉइंट ले लेते हैं। एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5, 5। z = 15, 45, 60। फिर करो बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कितना है, 15, 15, 15, 15। z = 15, 45 + 135 कितना हो गया, 180। अब बी के पास सी पॉइंट पे आ जाइए। व्हाट इज दी सी पॉइंट, 0, 20। z = 0 + 180, दिस इज इक्वल टू 180। अब डी पॉइंट पे आ जाइए। डी पॉइंट कौन सा है, 0, 10, 0, 10। z = 0 + 90, दिस इज इक्वल टू 90। अब इसमें से चेक करके देखिए कौन सी मैक्सिमम है। तो ये तो बेटे आपके पास हो गया मैक्सिमम, और दिस वन इज़ दी मिनिमम, दिस वन इज़ दी मिनिमम। राइट, तो आपके पास क्या हो गया आंसर में, हैंस z इज मिनिमम, वैल्यू पुट कर दीजिए 60 मिनिमम एट पॉइंट ए 55 एंड मैक्सिमम ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दो 180 एट 2 पॉइंट्स सी 0, 20 एंड बी 15, 15, 15, 15। दिस वन इज द आंसर। सिंपल, ये आंसर आ गया। नो स्टार्ट एग्जाम्पल 4th। Determine the graphically the minimum value of the objective function z is to this one. Simply find the minimum value। ये आपके पास कंस्टेंट्स दी गई है। अब ऐसा करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, यहीं पे इसे नंबर 2 ले लेते हैं। दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। From first, let 2x minus y, this is equal to -5, as x equal to 0, we take any 2 points, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। as x is equal to 0, y is equal to 5, as कोई और पॉइंट ले लीजिए, x is equal to any different point, x is equal to, as x is equal to 4, y is equal to 3।
x is equal to 4, 8 minus 8 13, and minus 13, it means y is equal to 13, right? Clear? This point, ये बेटे आपके पास दो पॉइंट्स आ गए. एक पॉइंट हो गया 0 5, वी टेक एनी टू पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन है, ड्रा करनी है आपने. एक पॉइंट आ जाएगा 4 13, 4 13. फ्रॉम सेकेंड, let 3x plus y is equal to 3 as x equal to 0, y equal to 3. एज फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए. एज x इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए. x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस के 6. ये दो पॉइंट्स आ गए इसके भी. 0 3 एंड 3 माइनस 6. बस. हाँ, थर्ड भी है. फ्रॉम थर्ड लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 एज x को 0 ले लीजिए, y इज इक्वल टू -4 एज y को 0 ले लीजिए, x इक्वल टू 6. इसके बेटे दो पॉइंट्स हो गए. एक आ जाएगा 0 4, 0 -4, सेकंड पॉइंट इज 6 0. बस दैट्स ऑल, राइट. अब ये दिस वन इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ. चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ. दिस वन ये आपके पास ग्राफ हो गया. मार्क ओरिजिन 0 0, x डैश, y डैश. अब लीजिए पॉइंट्स, जहाँ से स्टार्ट करिए. आपके पास बेटे ये दिए गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. यहाँ से 3 स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी. x 0 y 5, इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू 13 है और x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास चेक कर लीजिए 6 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. This one is 13. This point, एक तो पॉइंट आपके पास ये आ गया. फर्स्ट 0 5, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. दिस पॉइंट 0 5, दिस पॉइंट इज 0 5. 4 13, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 13. x इज इक्वल टू 4, चलिए 4 लेते हैं. 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 13. 6 7 8 9 10 11 12 13. This one is the 13. 4 13, this point, right. ये बन जाएगा आपके पास this point. This is equal to 4 13, राइट. इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन करिए. लो जी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया. अब आपने ये देखना कि ये तो ग्राफ है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 का. दिस स्ट्रेट लाइन पर मेरे को चाहिए 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू -5. आइदर दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन. If origin satisfy the in equation, then
origin side, otherwise other side, right? 0 0, put 0 0, 0 0 greater than equal to -5, which is true. It means including the origin. This one the graph. This is the graph of 1. चलिए, right? Second number पे आइए. 0 3 1 2 3. This one is 0 3 0 3 3 minus 6, 3 minus 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 minus 6, 1 2 3 4 5 6 minus 6, 3 minus 6 है, तो बेटे ये बन जाएगा आपका दिस पॉइंट इज़ 1 2 3, 3 minus 6, दिस वन इज़ 3 minus 6, दिस पॉइंट इज़ 3 minus 6, ये वाला पॉइंट ये हो गया ना आपके पास 3 minus 6, राइट? आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे भी ज्वाइन करिए. अब चेक करिए, containing the origin or does not containing the origin. It depends upon the origin. Put the origin 0 0 0 plus 0 greater than or not, does not containing the origin. आपका ग्राफ सेकंड का इक्वेशन का इस साइड को चला जाएगा. Come to the third point. 0 minus 4, 1 2 3 4. This point is 0 minus 4, and 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, right? This point is 6 0. ज्वाइन करिए इसे भी. This is the graph. Is it containing the origin or does not containing the origin? 0 plus 0 less than equal to 12, which is true, containing the origin. Number third का graph containing the origin, right? And this one is, it lies in the first quadrant. Only we check in the first quadrant. Graph is the solution is in the feasible solution is in the first quadrant, right? चलिए, अब तो पॉइंट्स यस देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आ गए इसके. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, एंड दिस पॉइंट इज बी. ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और कौन सा हो गया? इस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे, कोई नहीं. ए बी, दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस पॉइंट इज डी. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. फाइंड डी, फाइंड डी. डी को कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड, फाइंड डी सेकंड एट एक्स एक्सिस, सेकंड लाइन, सेकंड एट एक्स एक्सिस, फाइंड डी, फाइंड डी. second question is 3x plus y is equal to 3, but here y is equal to 0. It means 3x equal to 3, x is equal to 1. It means point हो गया आपके पास 1 0. This point is 1 0. वैसे भी ये क्लियर हो रहा है. This point is 1 0, right? Is it clear? Now z is equal to minus 50x plus 20y at point A having coordinates 0 3. Z is equal to, this is equal to 0, this is equal to 3, 60. At point B, B point के coordinate 0 5. Z is equal to 100. At point C, having coordinate 6 0. Z is equal to minus 300. At point D, D is 1 0. Z is equal to minus 50, right? And you find the minimum value, and you check the minimum value, and minimum value कौन सी है? This one is the minimum value. ये आपके पास बेटे मिनिमम है, मिनिमम, राइट? तो आपके पास आंसर कितना आ गया? Hence
hence minimum value of z equal to minus 300 at point C having coordinate 6 0. This one is the answer. Clear? Simple way. चलिए solution of the fifth example. एक जैसे questions है, very simple. इसमें say first, say second. This one is first quadrant. आपका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बाकी क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं है. दिस वन फ्रॉम फर्स्ट लेट x plus y equal to 8 as x0 y8 y0 x8 points 08 and 80. From second let 3x plus 5y equal to 15 as x0 y3 y0 x5 points 03 and 50 j points. ड्रा दी ग्राफ. चलिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं. x की वैल्यू मैक्सिमम 8 है और y की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, तो 1 2 3 करके मार्क कर लेते हैं. चलिए ये आ गया आपके पास. दिस वन x dash y डैश. मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे भी 8 मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. This one is origin having coordinates 0 0 0 8. X is equal to 0, y is equal to 8. This point is 0, 8. 8 0. This point is 8, 0. Join it. ज्वाइन कर दीजिए. containing the origin or does not containing the origin, it depends upon this one. 0 plus 0, put here origin 0, x equal to 0, y equal to 0, 0 plus 0 equal to 0, 0 greater than equal to 8, which is not true. Does not containing the origin. Graph on this side. Graph on this side. Does not containing the origin. Second, 0 3 0, 3 and 5 0. 5 0. Join it. Join it. This one containing the origin or does not containing the origin. Put 0 0. It means containing the origin. Graph on this side. Containing the origin. Second graph. This graph on this side, this graph on this side. Right? There is no common portion. इसका ग्राफ इस साइड को जा रहे. On this side,
graph is this on this side, shaded region, this one in first quadrant only, and इसका जो ग्राफ है इस साइड जा रहा है in first quadrant only, this one. There is no common reason, no feasible reason. This problem having no feasible reason. Feasible reason means common portion. This problem having no feasible reason, and hence no feasible solution. Hence no feasible solution. No feasible solution, right? Now we start the exercise 12.1. Solve the following linear programming graphically. First question is this: z is equal to maximize z is equal to 3x plus 4y. ये बेटे आपके पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स दी गई है, राइट? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ये मैंने नोट किया हुआ क्वेश्चन करते हैं। इसे नंबर 1 ले लीजिए, और इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ग्राफ बनेगा, जो फिजिबल रीजन होगा, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, राइट? फ्रॉम फर्स्ट let x plus y equal to 4 as x equal to 0, y is equal to 4 as y equal to 0, x equal to 4। कौन से पॉइंट्स आ गया? 0, 4 एंड 4, 0। सबसे बड़ा ये ग्राफ बनाइए इसका। दिस वन वन, 2, 3, 4, ऐसे हम इस पे भी ले लेते हैं। ये तो पॉइंट छोटी ही है, इसको भी हम ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। x dash, y dash, 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4, right? First point 0, 4, x is equal to 0, this is the origin, 0, 0, 0, 4, this point, 0, 4, 4, 0, this point, this one is the 4, 0, that's all. Join, ज्वाइन कर लीजिए, राइट? ग्राफ ऑफ फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन। 0 plus 0 less than equal to 4, which is true, containing the origin. This one on this side, एरो का निशान लगा दिया मैंने। This one is the graph of 1. Second is the in first quadrant, right? This one is the graph. This is the graph. This one is the, right? This point is A and this point is B. Maximize z is equal to 3x plus 4y at A, 4, 0, z is equal to 12,
at b 0 4 z is equal to 16. This one is the maximum, right? It means therefore hence maximum value of z is equal to 16 at point B coordinate 0 4. This one is the answer. बिल्कुल सिंपल टेक्निक, राइट? अब जो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, ये क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस वन एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स मैंने जो नोट कर दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटे आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका जो भी ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। चलिए फ्रॉम फर्स्ट लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एज x इज इक्वल टू 0। एक आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, सिंपल पॉइंट हो जाएंगे। यू टेक एनी पॉइंट, लेट x इज इक्वल टू 0, y is equal to 4 as y is equal to 0, x equal to 8. Points are 0 4 and 8 0. Clear? चलिए from second let 3x plus 2y equal to 12 as x equal to 0, y is equal to 6, as y equal to 0, x is equal to 4. Points are 0 6 and 4 0. बस इतना ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। चलिए अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। बनाइए ग्राफ। तो पॉइंट चेक कर लिए, ऑन दी एक्स एक्स मैक्सिमम 8 है, ऑन दी वाई एक्स 6 है। तो आप चलिए मैक्सिमम 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है। अब 6 तक लीजिए y को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब 6 तक लीजिए, राइट? तो ये हो जाएगा ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आपके पास x। दिस वन इज x डैश, ये है y, एंड दिस वन इज y डैश, दिस वन इज y डैश, राइट? तो अब करिए इसे। अब आपके पास जो पॉइंट्स ने, ये लीजिए पॉइंट 0 4, x इज इक्वल टू 0, इसे मार्क कर दो 1 2 3 4 5 6, राइट? अब चलिए 0 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट हो गया बेटे आपके पास 0 4। दिस पॉइंट इज 0 4। आगे चलते हैं। अब आपके पास है 8 0। दिस पॉइंट इज 8 0, 8 0। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया। इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हम ये देखेंगे कि ये आपने देखना है कि इसका ग्राफ, ये लाइन है, इसका ग्राफ, ये तो लाइन इसका ग्राफ है इक्वल टू स्ट्रेट लाइन लीनियर। तो जो इनइक्वालिटी है लेस देन, इसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, हमारी हेल्प करेगा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 आप नंबर 1 में पुट करके देखिए। 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0 लेस देन इक्वल टू 8। इज इट ट्रू? येस, विच इज़ ट्रू। इसका ग्राफ इस साइड को जाएगा। एरो को निशान लगा दो। ये हो गया 1 का ग्राफ। बस दैट्स ऑल, सिंपल सी टेक्निक है जी।
अब अगले पॉइंट ले लीजिए, 0 6 है, एक्स इजिकल 0, वाई इजिकल टू 6, 0 6 4 0, दिस पॉइंट इज 4 0 4 0, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे भी हम चेक करेंगे ओरिजिन से। आपको अगर तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई करते 0 + 0 लेस देन ट्रू, सेकंड का ग्राफ क्लियर। अब जो थर्ड आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना कि कौन सा आपके पास कॉमन पोर्शन है। अब चेक करिए ध्यान से, जो फर्स्ट का ग्राफ है नीचे साइड को जाएगा, इधर देखिए ध्यान से, फर्स्ट का ग्राफ आपका नीचे साइड को चला गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जे वाला पोर्शन कट गया, ना आपने जे वाला पोर्शन लेना ना आपने जे वाला पोर्शन लेना, कट गया। अब इसका जो ग्राफ है ओरिजिन साइड है, इसका मतलब जे वाला पोर्शन भी कट गया। तो आपके पास बचा कौन सा पोर्शन है, आपके पास कौन सा पोर्शन बच गया है, दिस वन, दिस इज दी, दिस शेडेड पोर्शन इज दी रिक्वायर्ड ग्राफ, शेडेड पोर्शन जो मैंने शेड कर रहा हूँ, दिस शेडेड पोर्शन इज दी रिक्वायर्ड ग्राफ, इसका मतलब हो गया शेडेड पोर्शन इज दी रिक्वायर्ड ग्राफ, राइट। अब आपने क्या निकालना है, मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है। तो ये सारे पॉइंट इसके वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इसको ए ले लिया मैंने, राइट, और ये आपके पास हो गया बी पॉइंट, इसे मैं चलो बी ले लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और ये हो गया सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 4 है, राइट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम दोनों लाइंस को सॉल्व कर देंगे। तो आप क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12, इसमें से इसको माइनस करिए, 2x, देयरफॉर 2x = 4, 2x ये कट गया, ये 12 8 4, देयरफॉर x = 2 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करिए तो y की वैल्यू 3 आ गई है, ये चीज़ क्लियर होगी ना, y की वैल्यू 3 आ गई है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, वहाँ पे 6 हो गया तो y = 3, इसका मतलब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2 3, बस दैट्स ऑल। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब इसको देख लीजिए कैसे आपने करना है जी। तो अब आपके पास क्या आ गया, दिस वन, now z इज इक्वल टू कितना दिया, z -3x + 4y एट ओरिजन 0 0, z इज इक्वल टू 0 + 0 = 0 एट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 4 0, z इज इक्वल टू -12 + 0 = -12 एट बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 3, z इज इक्वल टू, x को 2 पुट कर दिए, -6 से तो प्लस के 12, आंसर इज 6 है, एट सी पॉइंट 0 4, z इज इक्वल टू 0 + 16, दिस इज इक्वल टू 16। ये है आपके पास बेटे मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज द मिनिमम। आपने ये मिनिमम निकालना, मिनिमाइज निकालना है, तो आपके पास क्या हो गया, हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -12 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है जी, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट ने 4 0, दिस वन इज द आंसर। ये है बेटे इसकी टेक्निक सॉल्व करनी, राइट। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड ये 6 क्वेश्चन है इसका मिनिमाइज। ये तो बेटे सेम क्वेश्चन है सारे, इसका मतलब 3rd to 6th क्वेश्चन आर सेम। मैं नोट ही कर देता हूँ पॉइंट जी, नोट
क्वेश्चन नंबर थर्ड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ सेम, ये बेटे सेम क्वेश्चंस थे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे आइए। अब इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, आपको मिनिमाइज भी निकालना, मैक्सिमाइज भी निकालना है। ये सारे कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y एंड सब्जेक्ट्स की ने सब्जेक्ट्स टू x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, xy ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन, इसमें मिनिमाइज भी निकालना पड़ेगा, मैक्सिमाइज भी निकालना, दोनों वैल्यूज निकालेंगे, राइट। इसे नंबर 1 ले लीजिए, नंबर 2 ले लीजिए, नंबर 3 ले लीजिए, और दिस वन इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका तो काम ही खत्म हो गया ना। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर, इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी आपका बेटे ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। नाउ करिए सॉल्व। फ्रॉम फर्स्ट लेट x प्लस 2y इक्वल टू 120। इसके ऊपर 2 पॉइंट लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था। एज x0, y कितना आ गया 60, एज y0, x आ गया 120। लो जी, दोनों पॉइंट्स हो गए, एक 0 60 आ गया, एक 120 0 आ गया। चलो इसका रोल खत्म। अब सेकंड पे आ जाइए। फ्रॉम सेकंड लेट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एज x0, y60 एज y0, x60। कौन से 2 पॉइंट्स आ गए? एक हो गया 0 60 तो दूसरा पॉइंट आ गया 60 0। चलिए इसका रोल भी खत्म हो गया। अब थर्ड पे आ जाइए। फ्रॉम थर्ड लेट x माइनस 2y इक्वल टू 0 एज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। एक तो पॉइंट आ गया बेटे 0 0, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y। क्लियर। एज ये y की वैल्यू कुछ अब और पुट करनी पड़ेगी। 0 0 तो हो ही गया ये आपके पास। अगर x को 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x 0, पॉइंट तो एक ही निकलेगा ना 0 0। अब इस पे आइए, y की वैल्यू पुट कर दिया है, y इक्वल टू 30 ले लीजिए। y इक्वल टू 30 तो x इक्वल टू कितना आ गया 60। इसका मतलब मैंने x को ले लिया 60 तो y कितना आ गया 30। कौन से 2 पॉइंट्स आ गए? इसके जो पॉइंट्स आ गए बेटे, एक आ गया 0 0, दूसरा आ गया 60 30। बस दैट्स ऑल। अब इसका ग्राफ ड्रा करिए, इसका ग्राफ ड्रा कर दीजिए। तो आपके पास मैक्सिमम 120 है, तो 120 हम ले लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, इस करके ज़रूरत नहीं है सारा इधर साइड करने की। तो आपके पास ऊपर को y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 60, y की वैल्यू मैक्सिमम 60। तो ये हो जाएगा पॉइंट आपके पास, मार्क कर दीजिए। को कितने से मार्क करें हम? 30 30 नहीं, 10 10 के मार्क कर दें। 20 30 इस पे भी आ जाओ, इस पे भी मार्क कर देते हैं पॉइंट्स। आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं।
अब इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये बेटे आपके पास है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब करिए पॉइंट्स। पहला पॉइंट कौन सा है? 0, 60। अब 0, 60 लीजिए, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 60। ये आ जाएगा आपके पास 0, 60। एक पॉइंट ये हो गया 0, 60। 120, 0, एक पॉइंट आ गया 120, 0। इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपके पास, मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब देखना इसका ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा, ये डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर। इसमें ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट करो, 0 + 0, 0 लेस देन इक्वल टू 120। इसका मतलब विच इज़ ट्रू, जो ग्राफ जाएगा इंक्लूडिंग ओरिजिन साइड। ये हो गया नंबर 1 का ग्राफ। बस इतना ही काम है, ये मैंने दोनों साइडों पे 1 लिख दिया। चलो, इसका ग्राफ इस साइड हो गया। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 0, 60, x इक्वल टू 0। इसमें भी 0, 60 आया, उसमें भी 0, 60। ओके, ये फिर आ गया 0, 60, राइट। तो दूसरा आ गया 60, 0। ये पॉइंट हो गया 60, 0, 60, 0। ज्वाइन कर दीजिए, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। अब इसका भी ग्राफ चेक करिए, किस साइड जाएगा। ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ग्राफ आपका ऊपर साइड को जाएगा। दिस वन, ये सेकंड का ग्राफ हो गया, विच इज़ नॉट ट्रू, 0 + 0। ओके, x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहले x - 2y ग्रेटर दैन 0, 0 पॉइंट्स, ये पैटर्न ले ले 0, 0, 60, 30। ये हो जाएगा 60 और ये बन जाएगा बेटे आपके पास 30। दिस वन इज़ 30, 60, 30। ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 60, 30। दिस पॉइंट 60, 30, ये आ गया, राइट। अब इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन करिए, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया ज्वाइन। अब आपने बेटे ये देखना है कि इसकी जो हेल्प है ओरिजिन नहीं करेगा। इसका ग्राफ या इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, इसकी हेल्प ओरिजिन नहीं करेगा। इसकी हेल्प जे वाला पॉइंट कर सकता है, जे वाला पॉइंट कर सकता है। अगर तो ग्राफ इस साइड को जाएगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। किसी इस साइड को पुट कर लो या इस साइड को पुट कर लीजिए। x को 0, y को 60 पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 60। आपके पास है 0, मैंने यहाँ पे 60 पुट कर दिया। 120 कितना आ जाएगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, राइट। इसका मतलब इसका ग्राफ ऊपर को नहीं जाएगा, इस साइड को जाएगा। थर्ड का ग्राफ इस साइड को जाएगा। बस दैट्स ऑल, क्लियर। अब देखेंगे कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन देखने का सिंपल तरीका किया, पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए कौन सी है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसका ग्राफ बेटे नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा इसका ग्राफ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। ना हम इसे लेंगे ना हम इसे लेंगे, राइट। अब चलेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है ये वाला ग्राफ। इसका जो ग्राफ है ऊपर को जाएगा, जब बेटे ऊपर को जाएगा तो ये वाला पोर्शन कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, राइट। अब आपके पास बचा क्या है? जो थर्ड है, इसका जो ग्राफ है नीचे को जाएगा। जब नीचे को जाएगा बेटे इसका ग्राफ, ये वाला पोर्शन कट गया, तो आपके पास ये चीज़ आई है। दिस शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। शेडेड पोर्शन, तो ये हो गया आपके पास शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, राइट। अब इनके पॉइंट्स ले लीजिए। चलिए, इसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे मैंने बी पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। और आपके पास एक पॉइंट ये है सी, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है डी, ये आपके पास डी पॉइंट हो गया, क्लियर। और जो सी पॉइंट है आपके पास, सी पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई ग्राफ पेपर नहीं है,
तो एक्यूरेट के लिए तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? फॉर सी पॉइंट के लिए देखिए, फॉर पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाइन, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों को सॉल्व करिए। फर्स्ट लाइन कितनी है? x प्लस 2y इक्वल टू 120, और थर्ड लाइन कितनी है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। या बेटे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई है 60, और x की वैल्यू 60 पुट कर दीजिए, और ये y की वैल्यू आ गई है 30। लो जी, दिस इज़ द करेक्ट पॉइंट। जी आपके पास पॉइंट ठीक है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल ठीक है, 60 30। चलिए, ये वाला सी पॉइंट आ गया 60 30, 60 ते 30। अब कौन सा बचा? डी पॉइंट बचा है। अब डी पॉइंट पे आ जाइए। डी पॉइंट, फॉर पॉइंट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करिए। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है? कौन कौन सी इक्वेशन करेंगे? एक सेकंड को, एक थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कौन सी है? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 60, और थर्ड कौन सी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, जब हम नेगेटिव करेंगे बेटे ये 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आप इसको इसको माइनस करिए, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 20। जब y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। लो जी, ये आ गया इन दोनों को सॉल्व करके। नाउ अब चलिए, z की जो वैल्यू है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, ठीक है ना। तो एट, पहले कौन सा पॉइंट लेंगे? ए पॉइंट। एट ए, कोऑर्डिनेट 60 0, z की वैल्यू कितनी आ गई है? 300। ये 0 हो गया। एट ए के बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 120 0, z की वैल्यू कितनी आ गई है? 600, राइट। एट सी पॉइंट कौन सा है? 60 30, तो z की वैल्यू कितनी आ गई है? 300 प्लस 300 600। आगे चलते हैं। एट डी पॉइंट कौन सा है? ये है आपके पास। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने 40 20, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटे 40 20। तो 40 20 पे आ जाइए। 40 20, z इज इक्वल टू 200 प्लस 200 400। क्लियर? अब इसमें से देख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ये आपके पास है, ये है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू ये है आपके पास मिनिमम, राइट। तो आप क्या लिखेंगे? हेंस z इज मैक्सिमम z इज मैक्सिमम मीन्स कितनी वैल्यू होगी इसकी? 600 एट पॉइंट्स बी एंड सी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी है? 300 एट पॉइंट ए। दिस वन इज द आंसर, राइट। ये नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किया 7th। अब देखिए 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक सम हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, देन फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपके पास, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। दिस वन इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, राइट। अब करिए। तो फ्रॉम फर्स्ट लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एज x0 y1 y0 x-1।
ये बेटे पॉइंट्स आ गए 0 1 -1 0 फ्रॉम सेकेंड -x + y = 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x - y दिस इज इक्वल टू 0 एज x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0 0, एक आ गया 1 1, राइट। बस यही दो चीज़ें। अब इसको सॉल्व करिए, तो मार्क करिए इसे, ये लीजिए। तो इसमें मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 1 ही है, तो थोड़ा सा फिगर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये राइट ड्रा कर दीजिए। और इस पे चलिए तो मार्क करिए। तो आपके पास ये 1 लेना है, मैंने मैक्सिमम 1 है, हाईएस्ट 1 को बड़ा करके ले लेते हैं, ये 1 है। और इस साइड पे आपके पास बेटे ये 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो गया 1, यहाँ पे ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। ये हो गया x डैश y डैश। अब चलिए पहला पॉइंट आइए, x0 y1, दिस पॉइंट x0 y1 0 1 -1 0। अब -1 0 भी लीजिए, -1 0, ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये -1 है, -1, तो ये बन जाएगा -1 0 -1 0। इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन करिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे इसका जो ग्राफ है किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ओरिजिन की साइड जाएगा कि दूसरी साइड जाएगा। ये हम कैसे चेक करते हैं, इसमें पुट करते हैं 0 0 0 -0 0 0 लेस देन -1, नॉट ट्रू। इसका ग्राफ ऊपर को जाएगा, इसका ग्राफ ऊपर को चला गया, 1 का ग्राफ। राइट, आगे चलते हैं। ये है 0 0, दिस पॉइंट 0 0, एक हैगा 1 1, तो 1 1 पॉइंट कहाँ आएगा, हम अप्रोक्सीमेटली मार्क करते हैं। ये वाला पॉइंट इस साइड से 1, इस साइड से 1, दिस पॉइंट इज 1 1। अब इस पे आ जाओ, ये हो गया दिस वन, राइट। तो इसे भी चेक करिए, आपका कहाँ जाएगा। आप इसमें से 0 पुट करिए, 0 0 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, ये 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 0, नॉट ट्रू। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू। तो x की वैल्यू सपोज करिए कि मैं पुट करता हूँ 1 और y की वैल्यू 0 पुट करें, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू -1 हो गया, -1 विच इज़ लेस ट्रू। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि फिर हमें इन पॉइंट्स में से चेक करना पड़ेगा, 0 0 नहीं हम कर सकते हैं, वो तो इन पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, 0 1 कर लीजिए, x को 0 y को 1 पुट करिए, फिर पता चल जाएगा ग्राफ आपका इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, 1 लेस देन इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू, आपका ग्राफ इस साइड जाएगा। सेकंड का ग्राफ, राइट, इसका ग्राफ इस साइड चला गया। तो अब हुआ क्या है, ये है पोर्शन, या तो इस साइड है, ये इसमें तो कॉमन पोर्शन कोई है ही नहीं है, हैंस नो feasible reason, no maximum value of z, therefore no maximum वैल्यू ऑफ z, इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। लो जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया। गुड लक। लेक्चर को बेटे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो एवरी सैटरडे हम डालते हैं वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।